So in applications of differential equations, we see about the next problem. Find the population of city at any time t. At any time t, population कितना रहता है वो निकालना है. Given that the rate of increase of population is proportional to the number present. बोले तो in time t में अपन कुछ x बोल के लेंगे अपन population. X be the number of present population. Then what is the condition? उसका rate of change, increasing rate dx by dt is proportional to what do you have? Number present x. Same bacteria किए थे ना वही है. So in a period of 40 years the population increased from 30,000 to 40,000. Means initially दिया हो गया कितना initially 30,000 है. After 40 years के बाद वो कितना हो गया 40,000 हो गया. Okay ना means 40 years में 10,000 इंक्रीमेंट हुआ है. सो अपन क्या लेते हैं पहले इसका सॉल्यूशन के लिए अपन व्हाट वी आर टेकिंग लेट x be the population present, x be the population present at time t, at time t. so इससे क्या होता है what is the given condition? dx by dt is proportional to x. This is given condition. dx by dt is proportional to x. और क्या लेते हैं अपन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो dx by dt is equal to kx. और भी क्या लेंगे अपन dx अपॉन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना differential equation है variable separable x we are getting this side and dt that side k dt. now both sides what you are doing integration of 1 upon x क्या होता है log x k into integration of 1 dt t plus c. this is your equation 1. see that. So log x is equal to kt plus c. आपको पता है दो कंडीशन होना चाहिए k निकालने के लिए और c दो अननोन वैल्यूज है वो निकालना है. उसके लिए दो कंडीशन. एक कंडीशन इनिशियल कितना है पॉपुलेशन, नेक्स्ट कुछ इयर्स के बाद कितना बन गया वो सेकंड कंडीशन. तो इधर दिया ना 40 इयर्स. इन ए पीरियड ऑफ 40 इयर्स द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 30,000 to 40,000. बोले तो इनिशियल कितना है 30,000 पॉपुलेशन इनिशियली. सो इनिशियली व्हाट इज x 30,000. व्हेन द टाइम कितना लेते हैं अपन t is equal to 0 है ना. इनिशियली 30,000 दिया है, टाइम कितना लेते इनिशियली 0 लेते. वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इन द 1 from 1. so log x बोले तो what is there 30,000 is equal to k into t बोले तो 0 plus c. therefore c is equal to log 30,000. c value log 30,000 c is equal to. हाँ तो अभी क्या करेंगे अपन that c value we are substituting in the 1 में पुट करने का from 1. So log x is equal to kt plus c. c बोले तो कितना आया था log 30,000. इसकी इधर लिख आओ. पता है ना आपको क्या करते हैं log x minus log 30,000. log x minus बोले तो कितना होगा वो 30,000 upon 30,000 is equal to kt. this is your second equation. देखिए एक बार अभी k निकालने के लिए और एक कंडीशन दिया है कि 30,000 से पॉपुलेशन कितना बन गया 40,000 इन हाउ मच टाइम 40 इयर्स. सो x is equal to 40,000 when the time is 40 years. okay, now we are substituting in the second, that is log of 40,000 by 30,000. x प्लेस में 40,000 ले रहे सेकंड में पुट कर रहे हैं अपन इज इक्वल टू k इंटू टी. बोले तो 40 है उधर k वैल्यू निकाल रहे हैं यहां से अपन.
So anyhow इधर 4 zeros get cancelled. So k is equal to 40 इधर multiple कर रहा है तो इधर आए तो divide 1/40 log 4/3. Now again we are substituting in the second from 2. What you are getting? Log x by 30,000 is equal to k into t. K बोले तो कितना है सर? 1/40 into t. That is t by 40 into log 4/3. See there. अभी मेरे क्या निकालना है? फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी. बोले तो x वैल्यू फाइंड आउट करो. क्या निकालना है? x वैल्यू फाइंड आउट करना है. when at which time? t के पास. t में ही होना कहते हैं उसको. बोले तो यहां से क्या निकालने का? x वैल्यू निकालने का. तो एक स्टेप अपन ले रहे इधर log of x by 30,000 is equal to ये 3/40 जो है ना it comes to power. तो कितना होता है? log of 4/3 whole power t by 40. दोनों साइड log get cancelled है ना. तो क्या मिलेगा आपको? x upon 30,000 okay is equal to 4/3 power how much? t by 40. Therefore x is equal to ये 30,000 उधर मल्टीप्लाई करे तो 30,000 4/3 power t by 40. x क्या है? पॉपुलेशन नंबर. ओके कब? टाइम t. t इज इक्वल टू कुछ नहीं दिया उन्हें. Okay, now see here, the next one is a right circular cone has height 9 centimeter. Height कितना ले रहा है? 9 centimeter. ओके ना. इसका हाइट 9 सेंटीमीटर टोटल हाइट. इसका बेस जो है ना इसका इधर और यहां से यहां तक हाइट 9 सेंटीमीटर दिया है सर. और बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर. हियर इट इज. ये कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर. तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन? वाटर पोर कर रहे हैं. सपोज वाटर इसमें डालने के बाद सपोज यहां तक आ गया उसका वाटर सरफेस. वाटर सरफेस इज हियर. तो इसका क्या लेते हैं अपन? वाटर सरफेस का हाइट लेंगे h. वाटर सरफेस का बेस रेडियस लेंगे r. ओके नाउ सी हियर सॉल्यूशन. कोन किसका? राइट सर्कुलर कोन. हाइट कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर. बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वाटर सरफेस. वाटर सरफेस जो है उसका हाइट कितना ले रहे हैं अपन? h सेंटीमीटर. बेस रेडियस जो है कितना ले रहे हैं अपन? r सेंटीमीटर. तो ठीक है. वाटर जो डाले ना वहां तक हाइट h लिया मैं और क्या दिएगा अपन? r सेंटीमीटर. एनी हाउ हियर आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं. अपन किए थे ऑलरेडी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. ओके ना. वहां पर भी क्या किए थे अपन? मेजरमेंट. किसमें? अपना जो टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड रेट मेजर बोल के प्रॉब्लम्स किए थे है ना. तो उसमें आपको पता है कि वन ट्रायंगल दिस इज द वन ऑफ द ट्रायंगल. दिस इज बिगेस्ट ट्रायंगल. उसके अंदर वी हैव अनदर स्मॉलेस्ट ट्रायंगल विल बी लाइस. Then its ratio we are taking. We are forming a relation between them. You know ना? what do you have? ये जो biggest triangle का suppose यहाँ पर angle लेंगे तो ये opposite है ये. Opposite side of biggest triangle is 5. क्या लिखेंगे इधर? By similar triangles. By similar triangles 5 upon its opposite side. Smallest triangle का कितना होता है? R होता है. ओके ना. नेक्स्ट बिगेस्ट ट्रायंगल का ये एडजेसेंट जो है ये पता है आपको कितना है? 9 सेंटीमीटर है. एंड वाटर लेवल तक हाइट कितना लिए थे अपन? h लिए थे.
सो इसमें रेट ऑफ चेंज किसका दिया है, नाउ सी हियर इट इज इन्वर्टेड एंड वाटर इज पोर्ड इनटू इट, यहाँ तक ओके। इफ एट एनी इंस्टेंट वाटर लेवल राइजेस, वाटर लेवल बोले तो क्या है, हाइट, मींस h में होना चाहिए, तो r वैल्यू h में निकाल के रखो, किसमें, r वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h, तो r उधर लेके जाओ, ओके, देन h इधर आए तो 5h और 9 विल बी डिवाइड, r इज इक्वल टू 5h अपॉन 9, वन रिलेशन एक साइड में ले लिया। नेक्स्ट कंडीशन जो दिया है, प्रोपोर्शनल कंडीशन इज गिवन ना, व्हाट इज दैट, given what is the given sir, if any instant the water level rises at the rate of pi by a centimeter per second, water level बोले तो क्या है, इधर water कहाँ तक लिए अपन, height कितना लिए, h लिए, तो water level बढ़े तो क्या बढ़ता है, h बढ़ता है ना, तो h का rate of change कितना है, h का rate of change dh by dt is, it is not proportional sir, क्या दिया उन्हें, at the rate पाई अपॉन ये कांस्टेंट के साथ दिया है, तो पाई अपॉन ये dh by dt is equal to पाई अपॉन a is given, and what about a here, यहाँ पर ये क्या होता है आपको मालूम है, here ओके, वाटर लेवल दिया ना उन्हें, वाटर लेवल दिया है अपने को, है ना, सो dh by dt is equal to pi upon a, what about the a is, ये क्या है सर, इधर the area of water surface, this water surface, ये जो है ना, ये वाटर सरफेस, ये क्या होता है मालूम है क्या, वाटर सरफेस कैसा रहेगा, वो कौन में, एज ए सर्किल होता है, तो अपने को क्या निकालना है, इधर साइड में निकाल रहा हूं मैं, सिंस व्हाट अबाउट ये इज एरिया ऑफ water surface, okay, so what about the area of water surface means, it is a circle, वो सर्किल फॉर्म कर रहा है, इसका रेडियस कितना ले रहे हैं आप, स्मॉल r, तो रेडियस r, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्किल इज पाई r स्क्वायर, दिस इज पाई r स्क्वायर, so what it becomes, dh by dt is equal to pi upon, ये बोले तो pi r square, now pi get cancelled, चलो r वैल्यू इधर से पुट करना है, 5h by 9, so dh by dt is equal to 1 upon 5h by 9 whole square, करेक्ट है, so dh by dt is equal to, ऊपर 81 आ रहा है, नीचे 25h square आ रहा है, ओके ना, हाँ नेक्स्ट, अभी h स्क्वायर वेरिएबल सेपरेबल करने का है अपने को, तो h स्क्वायर इधर आके मल्टीपल होता है dh के साथ, और इधर 81 by 25 into dt होता है, now both sides what you are doing, integration, ओके ना, नेक्स्ट h स्क्वायर का हो रहा है h क्यूब by 3 इंटीग्रेशन, इधर 81 by 25 1 dt is t plus c, ओके ना, तो अभी क्या बोल रहा था मैं, इधर c निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इनिशियल लेते हैं अपन, इनिशियल बोले तो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 अपन वाटर कुछ डालते भी नहीं उसमें, जब हाइट क्या होता है, h इज इक्वल टू 0 होता है, सो इनिशियली h इज इक्वल टू 0, देन टाइम t इज इक्वल टू 0, ओके ना, h 0 तो 0 हो गया, इधर t इंटू टी 0 हो रहा है, तो 0 इंटू समथिंग, एनी हाउ c 0 हो रहा है, तो यहां से फ्रॉम 1 इक्वेशन क्या बन रहा है, h क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 81 बाई 25 इंटू t, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, सी देयर, अभी क्या करना है सर अपने को, यहाँ पर व्हाट वी हैव, वेसल विल बी फुल, वेसल फुल कब होता है, h वैल्यू यहां तक आ गया और यहां तक आना चाहिए, यहां तक के लिए कितना होना चाहिए, h वैल्यू 9 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ओके ना, सो क्या कर रहे हैं अपन, वेसल विल बी फुल कब होता है, इफ h is equal to 9 सेंटीमीटर, h is equal to
9 सेंटीमीटर होगा ना तब होता है, तो उसमें पुट करो सब्स्टिट्यूट, तो क्या होगा इसमें फ्रॉम टू सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे अपान, हाँ तो कितना हो रहा है सर h क्यूब, 9 क्यूब हो रहा है, कितना है 9 क्यूब, मैं क्या लिख रहा हूं 9 स्क्वायर इंटू 9 लिख रहा हूं मैं, 81 आता है ना इसीलिए, अपॉन व्हाट 3, इधर 81 अपॉन 25 इंटू टी, चलो 81 को 81 जाता है 9 स्क्वायर, इसलिए 9 क्यूब को 9 स्क्वायर इंटू 9 लिखा मैं, और इधर 3 कितने बार जा रहा है 3 टाइम्स, ये 25 इधर मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 3 दैट इज 75 seconds, this is okay ना, so vessel will be full कब होता है in 75 seconds बोल के show that दिया है सर, okay, तो therefore a vessel will be full in 75 seconds, okay.